Sorry? मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आता हूँ, मैं आता हूँ इस पे। जी, होपफुली ये जो ऑनलाइन लोग बैठे हैं इनको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी कंप्यूटर की। यस यस Yes. सर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं पहले, बीच में भी पूछ सकते हैं, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नो देन वी कंटिन्यू। Okay, so just as a quick recap, recurrent neural network is basically an artificial neural network that is applied repeatedly on every timestamp in the data, and normally the data is in time series. So different objects of the data, they have elements that are different in lengths and they have a sequential order. Okay, so it's the same network that is applied again and again and again and again. The only difference is every time it is applied, it see a memory that is different than the earlier one. That's the only difference. Otherwise, it can be thought of just as application of a neural network again and again onto different data points. See, pictorially, it is basically pictorially, it is like this block, and it receives something with its own weights, that is memory or history. At time t minus 1, this is the history from the previous time, and this is the input at the current time, and then it actually generates, let me call this activation A at time t. The same activation, in fact, is ht, that is basically the history, but a standard is to denote them by activation A. You can write H or A, either way is fine. And from these hidden activations, you can have another neural network here or any classifier here or any task that actually generates yt hat. Okay, so then again we have the same block repeated with xt plus 1. It generates ht plus 1. Remember, at is equal to ht. This is just a different naming convention. When it moves forward, it is denoted as h. When it moves upward, it is denoted as a. But either way is fine. At plus 1, and this is for all t. At plus 1, and then you have whatever your, and this is yt plus 1 hat. And finally, for this particular sentence, you may have maximum time as xt, and you could have this ht. अभी आपने इतनी दफ़ा देख लिया कि अब आपको तकरीबन अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये, आप ये सवाल कर सकते हैं कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिकरेंट। तो रिकरेंट ये इसलिए है कि ये जो मॉडल है
this model actually is reoccurring again and again with all its parameters fixed. पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे, मॉडल की कोई डायनामिक्स चेंज नहीं हो रही टाइम के एतबार से ना. मॉडल का WX, WY, WH, they are as it is, moving as it is. So the model is reoccurring at different time steps, but the model receives different inputs at different time steps. So that's why it is called recurrent. सही है जी? There is sometimes there are problems in these deep neural networks. In general, the problems are the vanishing gradient problems. ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ग्रेडियंट को बैक फ्लो करवा रहे होते हैं तो ड्यू टू चेन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, यानी होता ये है कि यहाँ पे जो भी आपका लॉस फंक्शन है उस लॉस का ग्रेडियंट डिफरेंट टाइम स्टेप्स के ऊपर जब फ्लो करेगा तो ड्यू टू चेन ऑफ डिफरेंट चेन रूल इसमें अप्लाई होता है. तो जितना नेटवर्क ज़्यादा डीप होगा, ये चूंकि जो ग्रेडियंट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते होते अर्लियर लेयर्स पे आते हैं, तो इट एक्चुअली बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ सेवरल एंटिटीज़. और अगर ये सारी की एंटिटीज़ इनमें से कुछ या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ बहुत छोटी हों, सो द ओवरऑल ग्रेडियंट वैनिशेस टू ज़ीरो और वेरी स्मॉल वैल्यू. और जब आप ग्रेडियंट अपडेट करते हैं, यानी जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके अपडेट करते हैं, तो आपने स्टेप लेना होता है ग्रेडियंट डायरेक्शन में, ठीक है. और अगर ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ी हो तो दैट एक्चुअली डजंट चेंज. आप जरा गौर से देखिए, W new is equal to W old minus alpha, the derivative of the loss with respect to the W old. If this value is ideally, if this value is 0, then the W is not changing and hence training is not happening. And और ये नॉर्मली होता है अर्लियर लेयर्स पे, जितनी लेयर ज़्यादा हों, जो स्टार्ट वाली लेयर्स हैं उन पे जो ग्रेडियंट रिसीव हो रहा होता है वो आई मीन इट स्टॉप्स द ट्रेनिंग. और चूंकि अर्लियर लेयर्स में W चेंज नहीं होता तो अर्लियर लेयर्स की आउटपुट्स चेंज नहीं होती, तो पूरा जो फीड उसका फॉरवर्ड पास है उसके बाद अपडेशन के बाद, दैट एक्चुअली हैज़ प्रॉब्लम्स. ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में यानी जो नॉन रिकरेंट हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं कि वेट्स को, ये W मेट्रिसेस जो हैं इनको इनिशलाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि अगर इस तरह से इनिशलाइज किया जाए, इस तरह से इनिशलाइज किया जाए तो नॉर्मली it can avoid to some extent, it can avoid this gradient vanishing problem. एक और प्रॉब्लम होती है जिसको ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम कहते हैं. वो ये है कि प्रोडक्ट में वैल्यूज़ बड़ी बड़ी थी और ग्रेडियंट बहुत बड़ा हो गया, which means जो अब आपके जंप्स हैं they are very big, okay, and that may overshoot and you have these kind of problems. उसके लिए नॉर्मली ग्रेडियंट क्लिपिंग यूज़ होती है कि अगर आपका ग्रेडियंट एक थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो उसको उस थ्रेशोल्ड पे ले आएं, ठीक है. लेकिन वैनिशिंग ग्रेडियंट इज स्टिल अ प्रॉब्लम, ठीक है. ये डीप न्यूरल नेटवर्क में ऐसा होता है और उसके लिए वेट इनिशियलाइजेशन एक टेक्निक है. दूसरी टेक्निक है बैच नॉर्मलाइजेशन. बैच नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी हद तक ये कोशिश करता है कि ये इसको मिनिमाइज़ किया जाए वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को, या जो लर्निंग नहीं हो रही उस प्रॉब्लम को, डेटा स्केलिंग हर लेयर के ऊपर प्रैक्टिकली. लेकिन अदरवाइज इसका कोई थ्योरेटिकल तरीका नहीं है कि इसको यानी किया जाए. देयर आर सर्टेन रूल्स लाइक ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन है, वेट्स को एक ख़ास तरीके से इनिशियलाइज करना डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, एंड देन अप्लाइंग फॉर एग्जांपल डेटा स्केलिंग्स लाइक बैच नॉर्मलाइजेशन, they can avoid to some extent. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में डेप्थ 2 डायमेंशन में होती है. एक तो ये आपकी बॉक्स की डेप्थ है विच इज़ द डेप्थ ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स कितनी हैं, और दूसरा टाइम के अंदर ये जो अनरोल हो ही जा रहा है. मेक सेंस? सो दीज, अगर आपका सेंटेंस बहुत बड़ा होगा तो एक तो ये जो बॉक्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क है ये खुद बहुत डीप है, ज़्यादा डीप हो सकता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए. एंड देन ये जब टाइम में अनरोल होता जाएगा तो इट बिकम्स फर्दर वेरी वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क, बिकॉज इसकी टाइम डायमेंशन में भी इसकी अनरोलिंग हो रही है. सो दिस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम becomes a big issue, particularly in recurrent neural networks because of its depth in time dimension. Okay, अब इसके कुछ और उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप काफ़ी आगे चले गए हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर
ग्रेडियंट बैक प्रॉप करता हुआ यहाँ पे ग्रेडियंट 0 हो गया हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने xt से हासिल करनी थी, जो बार बार हासिल करनी थी, वो एक्चुअली इस जगह पे उतनी वो इफेक्टिव नहीं है, अवेलेबल नहीं है जितनी कि आपको चाहिए थी। और वो जो आपका जहन में है कि हमने तो मेमोरी कीप की हुई है समहाउ, दैट मेमोरी इज़ नॉट वेरी, वो बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी है नहीं, यानी उसके करीब करीब तो पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस टाइम स्टेप से जो बहुत पीछे है एक्चुअली दे आर मिस्ड। ओके, सो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस में आपने सेंटिमेंट फाइंड आउट करना है, बिलफर्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फर्ज करें कि उसके पहले 2 या 3 लफ्ज जो है उनमें एक ऐसा लफ्ज मौजूद है जो उसके सेंटिमेंट को काफ़ी अच्छा डिफाइन करता है, और अगर सेंटेंस बहुत लंबा होगा तो देन इवेंचुअली ये जो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स वाला वर्ड है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू द लास्ट लेयर। मेक सेंस? एंड द मेमोरी इज लॉस्ट। इसको हल करने के लिए लोगों ने बेसिकली 2 बड़े खूबसूरत किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। एक को कहते हैं LSTM और एक को कहते हैं GRU। दोनों मिलते जुलते हैं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये हैं क्या। ये एक यूनिट है RNN का, जिसमें हिस्ट्री आ रही है, इनपुट आ रही है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है अपनी हिस्ट्री नेक्स्ट टाइम पे और एक्टिवेशंस दिस टाइम पे। यस, इसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, द ऑपरेशंस आर लाइक कि मैं WX को X से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस WH को HT-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड उसके ऊपर मैं नॉन लिनियरिटी लगाऊंगा, एंड आई विल कीप ऑन मूविंग। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो HT आगे फॉरवर्ड करनी है, अगर मैं किसी तरीके से अपने रिकरेंट यूनिट के अंदर, अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये कैपेसिटी डाल दूं कि इट सेलेक्ट्स के मैंने पिछली हिस्ट्री को एज इट इज आगे फॉरवर्ड करना है, या मैंने उसको लेट से यूटिलाइज करके, इस इनपुट को भी यूटिलाइज करके आई हैव टू मूव ऑन। सो इज देयर अ वे ऑफ सिलेक्शन काइंड ऑफ, इसीलिए इसको गेटेड कहते हैं ना। वी हैव गेट्स इनसाइड। गेट इज जस्ट एन इफ कंडीशन। Gate is just an if condition. Can we have certain kind of if conditions inside the recurrent block that somehow decides कि यार कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने आगे भेजना है, कौन सा वर्ड है इस वक्त जिसकी कंप्यूटेशन अगर मैं ना भी करूं दैट इज ओके, कौन सा वर्ड है इस वक्त जिसकी कंप्यूटेशन ऐसी है कि पिछली जो मेमोरी है दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो मैं उसको आगे पास ही ना करूं। मेक सेंस? और बहुत बड़े कॉर्पस पे ये जो इफ कंडीशन के अपने पैरामीटर्स होते हैं कि कब फॉर एग्जांपल इसको कितना वेट देना है, इस हिस्ट्री को कितना वेट देना है, और इसको कितना वेट देना है, दीज आर आल्सो पैरामीटर्स इनसाइड द इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशंस करती ये हैं कि अगर आपने बहुत बड़े कॉर्पस पे डेटा ट्रेन किया हुआ है, इट एक्चुअली रिमेंबर्स और समहाउ एडजस्ट देयर वेट्स सो दैट कि अगर काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हैं तो दे नो कि अगर ये लफ्ज़ आ रहा है और आगे ये जा रहा है तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू पास ऑन, यानी ये इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे जाते हैं ये चलती जाएगी। इसको कहते हैं समटाइम्स, इसको कहते हैं कीप गेट, कीप द इंफॉर्मेशन, और इसमें एक और गेट होता है फॉरगेट गेट। कीप मीन्स कीप ऑन मूविंग, उसको कोई ख़राब ना करें और आगे चलते जाएं। फॉरगेट गेट, ये जो इन्फॉर्मेशन अब तक मैं देख चुका हूँ, ये जो मेरे पास हिस्ट्री अब तक आई है, इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जस्ट फॉरगेट इट। ये इस तरह के ये जो यूनिट्स तैयार होते हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट्स, उसमें एक वेरिएंट है GRU और एक है LSTM। दोनों का काम सेम है काफ़ी हद तक। LSTM में ज़्यादा गेट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिकरेंट यूनिट है। GRU में थोड़े गेट्स हैं, थोड़ा ये सिंपल है LSTM से। इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, यानी ये यूनिट्स एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, दैट मैथमेटिकल डेरिवेशन इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें दैट इज़ अवेलेबल। और मैंने यूडेमी पे एक कोर्स किया था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का, उसमें भी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस मौजूद हैं कि हाउ दे वर्क, LSTM एंड GRU। यूट्यूब का मैं आपको लिंक दे देता हूँ क्योंकि आप वहाँ से डायरेक्टली जल्दी से देख सकते हैं। लेट मी गिव यू
if I can. Sequence models, Nduang. This one. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. So if you, for example, go to gated recurrent units, this is the, You seem holiday basic. so he actually has derived each and everything for GRU, how it Don't works. update it. Just hang on to If you really want to see what are different kind of, okay. और मैंने जब अपना RNN का कोर्स बनाया था Udemy के लिए, ये actually borrowed a lot of stuff from here and Nduang. Okay. इसके बाद यहाँ पे LSTM भी है और उसकी भी derivation है. I'm not covering these derivations in class, but these are available there. Make sense? Okay. Should I paste this link somewhere? ओके ये लिस्ट है पूरी. मजीद RNN को मजीद तफसील से देखना हो, एक्चुअली द गाय हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. एक्चुअली इट्स अ बिग नेम इन मशीन लर्निंग. Nduang का पता आपको? इज अ मशीन लर्निंग में kind of this capacity. Okay, so both LSTMs and GRUs, they are basically required. They were originally proposed to keep long-term dependencies. अगर एक वर्ड की डिपेंडेंसी दूसरे वर्ड पे है और उसके दरमियान काफ़ी फासला है टाइम स्टैम्प्स का, तो एक्चुअली these units rather than the plain vanilla RNN units, these units are actually more practically they work very well. ठीक है जी. अच्छा, इसमें एक और LSTM GRU में अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको थोड़ी सी PyTorch में चला के दिखाता हूँ शॉर्टली. जस्ट लेट मी मूव ऑन. आपको एक दो और आर्किटेक्चर्स में बता के एंड देन आई विल मूव ऑन टू. एक और होता है जी बाई डायरेक्शनल RNN. अगेन ये जितने मैंने RNN में कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, ये जो मैंने अभी आपको लिंक दिया उस लिस्ट में सारे अवेलेबल हैं. ठीक है, बड़ी तफसील के साथ. बाई डायरेक्शनल RNN. बाई डायरेक्शनल RNN आइडिया ये है कि अगर एक वर्ड जो है, यानी अगर आपने डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, मे बी अगर आप फ्यूचर को भी देख लेते तो आप ज़्यादा बेहतर, यानी rather than going from left to right to reach somewhere, what if we go from left to right as well as from right to left to reach there, not only seeing the history so far, also see the future. अगर हमारे पास पूरे सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, वो स्ट्रीम नहीं हो रहे, एक एक वर्ड स्ट्रीम नहीं आ रहा, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, पूरा सेंटेंस अवेलेबल है, why don't we just go from left to right and update the information? Why don't we go from right to left and update the information for future as well? That is the basic intuition behind bidirectional RNNs. The architecture looks like the following. You have, for example, x0, x1, x2, dot, xt. Let's say, let me call this a capital T. Okay. This is your network that is reoccurring. These are the connections. Okay, these are the connections. And this is, everything is going from left to right. Yes? Obviously, there is initialization as well. And then things are being produced like so. That's the kind of ordinary RNN flow. अब ये यूनिट्स जो हैं, ये GRUs भी हो सकते हैं, ये LSTM यूनिट्स भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मल यानी यूनिट्स भी हो सकते हैं. बाय द वे, यूनिट से मेरी मुराद ये है कि आपका यूनिट नॉर्मली ये होता है ना,
और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेता है और उसके बाद इस पे वो अप्लाई करते हैं नॉन लीनियरिटी एंड देन इट रिजल्ट्स। GRU यूनिट फर्क तरह का होगा, लेकिन होगा ये एक न्यूरॉन टाइप का, ठीक है। एक जैसे एक न्यूरॉन होता है ना, उसी तरह एक GRU यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल न्यूरॉन जैसी एप्लीकेशन के अलावा इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। मेक सेंस? सो आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क हो सकता है GRU यूनिट्स का बना हुआ हो या LSTM यूनिट्स का बना हुआ हो। Okay, in bidirectional, what we really do is the following. We have another network. Let me call that network as this one. That network takes some input just like any RNN, but that network flows from right to left. And it has some initialization, okay? And it produces again certain outputs. Now, the first input is actually this one, then this input, then we have this input going there, and then we have this input going there. This is not required maybe, and here this is not required maybe. Make sense? So टाइम 0 के ऊपर जो आपकी इनपुट है वो आप इसको देंगे और इसको भी देंगे, लेकिन टाइम 0 की इनपुट प्रोसेस करने से पहले ये फ्यूचर वाली सारी इनपुट्स प्रोसेस कर चुका होगा। सो बेसिकली ये आउटपुट है फ्यूचर की और ये आपकी आउटपुट है हिस्ट्री की। किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे अगर आप देखें तो आपकी जो बैकवर्ड पास है और जो फॉरवर्ड पास है, यानी जो दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो दोनों जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा हिस्ट्री की और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा फ्यूचर की। और अब आप करेंगे ये, यानी एक तरीका ये है, फॉर एग्जांपल इस टाइम स्टेप पे आप इन दोनों आउटपुट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर लें, ये वेक्टर्स होंगे, इन दोनों को कंकैटिनेट कर लें और कंकैटिनेट करके ये एक वेक्टर है जो आपका है बेसिकली AT। अब आपके पास दो ATs आ रहे हैं, AT फॉरवर्ड, AT बैकवर्ड, दोनों को कंकैटिनेट कर लें, दैट इज योर AT। और इस AT के ऊपर आप वही अपना जो भी आपने क्लासिफायर बिल्ड किया हुआ है जो भी है वो लगाएं, एंड दैट विल गिव यू YT। Now for each time step, not only you have the previous information, but you also have the future information as well. And that performs even better in practice. Make sense? Yes? Great. काशिफ, इसमें ये क्वेश्चन है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो है वो पहले सारे कंप्यूट होंगे और बाद में फिर बैकवर्ड वाले होंगे? अब पैरेलल में ही होता है नॉर्मली। ये आपने पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कर दिया ना, जब पूरा सेंटेंस आपने प्रेजेंट कर दिया तो पैरेलल में ये भी कंप्यूट हो रहा है, ये भी हो रहा है। यानी अब इसको इन दोनों को आप यानी इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, सिर्फ इनकी इनपुट शेयर्ड है, बाकी ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यानी अगर मैं ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस लेफ्ट वाले को दे दूं और पूरा का पूरा सेंटेंस राइट वाले को दे दूं, तो एट द एंड मेरे पास हर टाइम स्टैम्प के ऊपर आउटपुट्स जनरेटेड होंगी और इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंटली पैरेलल में अप्लाई कर सकता हूं। ओके, सही। डज दैट मेक सेंस? हाँ जी। ओके, इज दैट ओके? यस? ओके, one more, I don't know I should cover this today or not, but let me just go to the code first, and whatever we have covered so far, let's get comfortable to that, and then I will come back to what I'm going to cover right now is attention mechanism. But let me see if we get time to cover this. Otherwise, we will cover this in the context of neural machine translation next time. If we get a time, if we get some time, then we'll cover that. Yes? So कोई सवाल तो नहीं है जी किसी का?
अच्छा, ये PyTorch के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले लेट्स सी वन अदर notebook that actually is a notebook for review classification. And here we have again, we are using the implementation that we did in the last lecture without PyTorch NN module. Okay, so let's see. I guess you have already what does ठीक है। ये आई गेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमने वोकेबलरी बनाई थी पहली क्लासेस में कभी, ये वही कोड है पूरा, ठीक है। ऐड टोकन, ऐड मैनी टोकन्स, अगर पहली दूसरी तीसरी क्लास आपको याद हो, सो दैट्स द सेम कोड, जस्ट के आपके पास एक नई फाइल आई है, आप उसमें से ये बनाना चाह रहे हैं। वोकेबलरी फ्रॉम डेटा फ्रेम, रिव्यूज़ पता नहीं अपडेटेड हैं यहाँ पे पड़े हैं, views.csv पड़ेगी। Okay, so I just load this file and it is there. Vocabulary from data frame, you know all these things. बल्कि अब तो आपके पास अच्छे टूल्स होंगे मज़ीद, चाहे स्पेसिस से कर लें, चाहे lookup, you know all these things. This vectorize basically is will vectorize your review. So basically ये करेगा ये कि जो भी रिव्यू है उस रिव्यू के हर वर्ड का वन हॉट वेक्टर बनाएगा और वन हॉट वेक्टर्स को कंकैटिनेट करके एक मैट्रिक्स दे देगा. So each sentence will be represented as a feature matrix because each word is a, ठीक है. So that does that. Maybe I should not go into the details. That's straightforward. Yes, is that okay? So that is just a vectorizer. Given a review, it will vectorize. So for example, this is some review and this is the feature matrix for it. So it was having 17 words. Each word has dimensions 8, 9, 4, 5. The reason is our vocabulary is 8, 9, 4, 5 dimensional. And we are not using some other embedding. We are using just one hot embedding. We could have used a better embedding like word2vec or something. In that case, the dimensionality would have been different. Yes? Okay. Let me go to the core of this. Rest of the things we already. ये मैंने कोई छोटा डेटा सेट बनाया हुआ है, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव. ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा था तो आई जस्ट टू गिव अ टॉय एग्जांपल. Vocabulary from data frame. That's a new vocabulary क्योंकि मैंने डेटा सेट छोटा कर लिया अपना just for. And this is something that you know already from our previous class. Okay? Yes? Now I'll be moving very quickly. Thanks to the previous class again. Create parameters, that's the training part. And now this is how we train it. यानी हम उसको रिव्यूज देंगे और उसको ये मैट्रिसेस देंगे और उसको कोई लर्निंग रेट देंगे और ये लास्ट वैल्यू नंबर ऑफ एपॉक्स देंगे और वो ट्रेनिंग अपनी शुरू कर देगा. यस, लर्निंग रेट जो है ना ये हाइपर पैरामीटर है और इसको चूज करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन थ्योरेटिकली कोई बेस्ट लर्निंग रेट एग्जिस्ट नहीं करता. रूल ऑफ थम्स हैं कि स्टार्ट करें लर्निंग रेट, पहले बड़े बड़े जंप्स लें, फिर जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एपॉक्स बढ़ते जाएं फिर जंप्स छोटे करते जाएं एंड सो ऑन. ग्रेडियंट डिसेंट तो हो रहा है ना,
ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट डिसेंट में जो अपडेट करना है ना, स्टेप जो लेना है, वो स्टेप साइज क्या होगा, ये फिक्स नहीं होता, कई दफ़ा ये चेंज होता है। एक पूरा लर्निंग रेट स्केजुलर होता है जो इसमें ना अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि लर्निंग रेट को चूज करने का कोई थ्योरेटिकल तरीका है कि दैट्स द बेस्ट लर्निंग रेट, नो सच लर्निंग रेट, जस्ट लाइक अदर हाइपर पैरामीटर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर। इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करने से कई दफ़ा मसाइल आ जाते हैं। ठीक जी, मसले बन जाते हैं। ये क्या हुआ? ओ मैंने वो चलाई नहीं, मैं अच्छा ये मैंने किया हरकत। ये लॉस जो है ये कम होना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको एक रिव्यू जो है ना वो क्लासिफाई भी करके देता हूँ, ठीक है, कि एक नया रिव्यू आया तो क्लासिफाई कैसे करेंगे। अब तो ये मॉडल ट्रेन हो गया ना, अब नया रिव्यू आया उसको क्लासिफाई करते हैं। ये एक नया रिव्यू है जी, ठीक है। मैंने पहले 5 रखे हुए थे जिस पे मैंने ट्रेन किया था, अब मैंने छठा उठाया है। ये मैंने वाई हैट निकाली है और ये वाई हैट की वैल्यू आ गई है 0.83 विच मीन्स दैट्स अ पॉजिटिव रिव्यू, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी। तो ये मेरे मॉडल ने गलत क्लासिफाई किया इसको, तो बेहतर ट्रेन करें एंड सो ऑन, बट दैट्स व्हाट इट इज। सॉरी, ये देखें यार, जब आप फॉरवर्ड पास करते हैं तो आपको वाई हैट ही मिलता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आप उसको बार बार करते हैं ना। Yes, this is just the application of the code that we saw in the last lecture. Just if you want to use that code, that's a review classification. सही है जी। Obviously इसको फास्ट करते हैं अभी, लेकिन अभी नहीं, यानी आप लोग फास्ट करेंगे इसको। Let's go to अब अगर आपको ये समझ आ गई है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं खुद से, ये कोई बहुत हाई फाई किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है, then we should go to PyTorch implementation that is available, और अब हम उसको फ्रेमवर्क भी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन लोग मैं काफ़ी तेज़ी से मैंने स्किम किया इसको, इज दैट ओके? जी ठीक है, फाइन। सही है, ज़बरदस्त। चलें जी, अब ये मिल क्यों नहीं रही इसको? Okay, let's go through this code book, and that will help you understanding how can you build recurrent neural networks in PyTorch, including bi-directional RNNs and all that stuff. Okay. So let's do that. Okay, so let's see. मैं आपको बैच मोड में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और दीगर चीज़ें इसकी जो PyTorch स्पेसिफिक हैं वो बताने जा रहा हूँ। हम ऑलरेडी PyTorch में डीप न्यूरल नेटवर्क्स इंप्लीमेंट कर चुके हैं क्लास के अंदर। मैंने आपको एक क्लासीफायर दिखाया था पूरा CIFAR 10 के ऊपर, ऑल दो कि उसमें थोड़ा सा इशू था लेकिन वो फिक्सेबल है। टुडे वी आर गोइंग टू सी नोटबुक ऑन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स फॉर PyTorch. सो लेट्स सी, फर्ज करें मेरे पास
डेटा है जो 0, 1, 2, 3, 4, 20 इंडेक्सेस हैं। आपको जब भी इंडेक्स नजर आए तो आपके जहन में आना चाहिए वोकैबुलरी का इंडेक्स, यानी ये कुछ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपको अगर कोई कहे 35 को एक्सप्लेन करें तो आप कहें 35 जो है ये असल में 36th वर्ड का इंडेक्स है। दैट्स वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, ये इंडेक्स है। अब मैं एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ। मैं इनपुट फीचर रख रहा हूँ 10, सॉरी इनपुट साइज रख रहा हूँ 10, वोकैबुलरी साइज है 20। ठीक है, इनपुट साइज क्या है? दैट इज बेसिकली योर फीचर साइज। आई शुड रीनेम इट टू फीचर साइज। इट्स द एम्बेडिंग साइज फॉर ईच वर्ड। 10 लेंथ का वेक्टर होगा। मेरा टोटल वोकैबुलरी साइज जो है वो 20 है, विच मीन्स कि मेरी जो भी वोकैबुलरी है वो 20 लेंथ की है। ठीक है, ओके। मैं मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को प्रोसेस करूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। तो मेरा जो एक सीक्वेंस होगा, यानी एक जो सेंटेंस होगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 5। सो दैट इज द सीक्वेंस लेंथ। अभी हम एग्जैक्ट लेंथ रखेंगे, लेकिन लेटर ऑन जब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, देन वी विल सी आर्बिट्रेरी लेंथ्स एंड ऑल दैट। बाय द वे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दोबारा बता दूं, नेक्स्ट क्लास जो है आपकी न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पे, दैट इज अ फुल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दैट इन क्लास, एंड दैट इज अ वेरी फैंसी प्रोजेक्ट। यानी वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं खूबसूरत किस्म की जो आप, एंड आफ्टर सीइंग दैट कोड यू विल बी एबल टू apply that code or a variant of that code on your projects, almost all the projects. So don't skip next class, whatever reasons. कोशिश करें कि next class आप class के अंदर ले लें, ताकि आपके जो confusion आप live questioning कर सकें। ठीक? Anyways, so sequence length, hidden size, that is basically the total number of RNN units। यानी अगर 2 यूनिट्स होंगे तो 2 वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी, 4 यूनिट्स होंगे तो 4 वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी, एंड सो ऑन। यस, सो वो जो HT निकल रहा है उसमें कितने वैल्यूज होंगी, हिस्ट्री वेक्टर का साइज क्या होगा। यस, मेक सेंस? ओ, ये हिस्ट्री वेक्टर का साइज नहीं है, ये आपका जो रिकरेंट जो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, लेट मी RNN और बाई डायरेक्शनल भी इसमें आएगा। ये अभी पैरामीटर सेट हो रहे हैं। ये डब्बा है ना, इसमें अगर 2 यूनिट्स लगे हुए हों तो ये यूनिट 1 नंबर देगा, ये यूनिट 1 नंबर देगा, उन दोनों को कंबाइन करके मैं कह रहा हूँ H। पीछे से H हो सकता है फर्क आ रहा हो ना, वो W से मल्टीप्लाई करके 2 नंबरों पे मैप कर देगा, जो भी WH है। मेक सेंस? सो हिडन स्टेट जो हिस्ट्री रिप्रेजेंट होगी वो 2 नंबरों से होगी, विच मीन्स के 2 बीच में न्यूरॉन्स। ओके, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स ये जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इसी तरह डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स भी होते हैं। यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अगर आप वैसे कहें ना, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, तो ये गलत बात है। टेक्निकली डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क किसको कहते हैं? लेट्स सी दैट वेरी क्विकली। अगर आपका ये ब्लॉक है, फिर ये ब्लॉक है, तो फिर ये ब्लॉक है, और फिर आपकी आउटपुट लेयर है, और ये सारे रिकरेंट हैं। सो हमने देखा था सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसमें इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा डीप न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, लेकिन अगर आपकी लेयर्स फर्क हो, मल्टीपल लेयर्स हो, और हर लेयर्स के अपने पैरामीटर, और सारी लेयर्स रिकरेंट हो, तो वी कॉल दैट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एज डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यस, सो यू कैन हैव फॉर एग्जांपल 3 लेयर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और अगर मैं इन लेयर्स को यहाँ पे बनाऊं मुख्तलिफ रंगों में,
WX1, WH1, WX2, WH2, WX3, WH3, WY. नो, ये सिर्फ वेट्स हैं। इसकी आउटपुट है x0, इसकी आउटपुट होगी A0 फ्रॉम लेयर 1, इसकी आउटपुट होगी A0 फ्रॉम लेयर 2. Make sense? Similarly, H0 of layer 1, H0 of layer 2, H0 of layer 3, and so on. So that would be, so in this case, we will call the recurrent neural networks deep. And in this case, the recurrent neural network has 3 layers. Dependent है. ये जो दूसरी लेयर है, उसको जो इनपुट जा रही है, वो पहली लेयर की आउटपुट है. इसको स्टैक्ड RNN भी कहते हैं. हाँ, यानी 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे, स्टैक्ड RNN. ज्यादा टेक्निकली इट इज कॉल्ड डीप RNN. Okay, so this parameter number of layers is basically that handles this one. Right now we are just taking the number of layers being 1, which means 1 flat, no stacking on top of each other. Batch size, we are going to actually convert our data to different batches, and we are actually many batches, and the batch size is 4. So we have 20 data points, for example. So we can, and each sequence has 5 words. So we can generate our data into 4 different batches. Make sense? Okay. So that's it. W matrix. अभी जरा ध्यान से देखते जाइएगा, ये मैं आपको PyTorch की स्पेसिफिक्स बता रहा हूँ. W matrix, अगर आपकी एम्बेडिंग्स पहले से ट्रेंड है, पहले से आपने एम्बेडिंग्स कोई रखी नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो एम्बेडिंग्स जो हैं मैं वो यूज करूं अपने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में. देखें, x0 जो है, या जो वर्ड है, लेट्स से वर्ड है फैन, ये फैन वर्ड एम्बेडिंग की सूरत में आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को देंगे ना, तो 2 तरीके हैं. एक ये कि आपने प्री ट्रेंड कोई एम्बेडिंग वर्ड टू बैक या कोई एम्बेडिंग पड़ी हुई है आपके पास, और आप वर्ड को उसमें देते हैं और वो आपको एम्बेडिंग वेक्टर देता है, एंड यू यूज दैट एम्बेडिंग वेक्टर. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका जो ज्यादा फैंसी है वो ये है कि एम्बेडिंग्स को आप रैंडमली इनिशियलाइज करें, जैसे आपने वेट्स को इनिशियलाइज किया कुछ भी, और उनको भी अपडेट करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी दे आर आल्सो लाइक पैरामीटर्स. इससे होगा ये कि ना सिर्फ आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व होगी, एट द एंड ऑफ द मॉडल इज ट्रेन्ड, आपकी एम्बेडिंग भी लर्न हो चुकी होगी. Make sense? So you can learn the embedding as well as, start from the random embedding, random values, and then just keep on, like, लॉस को कम करने के लिए एम्बेडिंग क्या होनी चाहिए. सॉरी, कोई भी रैंडम ले लें, कैसे भी बना लें, रैंडम, नॉर्मल रैंडम नंबर्स, एनीवेज. यस, तो जैसे ग्रेडियंट डिसेंट आप W's पे अप्लाई करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट एम्बेडिंग्स पे भी अप्लाई करें, यानी वो एम्बेडिंग्स लेके आओ जो लॉस को कम करें, तो आपकी उस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेसिफिक काइंड की एम्बेडिंग्स लर्न हो जाएंगी. सही है जी. पहला तरीका प्री ट्रेन एम्बेडिंग्स, दूसरा तरीका रैंडम एम्बेडिंग्स बट स्टार्ट अपडेटिंग देम, तीसरा तरीका प्री ट्रेन एम्बेडिंग्स एंड स्टार्ट अपडेटिंग देम. ये जो तीसरी बात मैंने की है, दिस इज नोन एज ट्रांसफर लर्निंग. ओके, सो आपके पास मॉडल पैरामीटर्स हैं. पहले कोई भी मॉडल के, सिर्फ एम्बेडिंग नहीं, कोई भी पैरामीटर्स, यू पिक द पैरामीटर्स फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल एंड देन यू डोंट कीप देम फिक्स, यू हैव न्यू डेटा,
just adjust your parameters according to the new data. And this scheme is known as transfer learning. Okay? Make sense? Right now, I'm using a pre-trained embedding, और मैं pre-trained embedding use कर रहा हूँ, और by default pre-trained embedding जब आप use करते हैं, by default वो freeze होती है, यानी उसको आप update नहीं कर सकते. लेकिन इसके अंदर एक पैरामीटर होता है freeze का. अगर आप freeze पैरामीटर false कर दें तो ये ट्रांसफर लर्निंग शुरू हो जाएगी, वो उस पर ग्रेडियंट्स कंप्यूट करना शुरू कर देगा. इट्स अप टू यू. सॉरी, तो अभी भी हम डीप लर्निंग में हैं. हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं. अच्छा, आप एंड टू एंड लर्निंग की बात करें. अगर आप रैंडम इनिशियलाइजेशन करेंगे तो ये फीचर्स खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड टू एंड लर्निंग. अगर आप कोई और न्यूरल नेटवर्क है जिसने पहले एम्बेडिंग्स बना ली हुई हैं और आपने इन स्टैटिक एम्बेडिंग्स को आगे यूज करना है, यानी जैसे प्री ट्रेंड एम्बेडिंग है ना, उसको आप फीचर एक्सट्रैक्टर समझें. अगर आपने फीचर एक्सट्रैक्टर को फिक्स करना है कि फीचर कहीं से जनरेट हुए हैं, देन वी आर, तो फिर ये फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे, बाकी आगे डीप लर्निंग ही है. ठीक है, ओके. काशिफ, इसमें अगर एम्बेडिंग्स लर्न होंगी जब, तो उसके लिए कोई आर्किटेक्चरल चेंज आरएनएन के अंदर तो आएगी नहीं, या नहीं, जरूरी नहीं है. यानी जो भी आपका W है, आपने जो भी एम्बेडिंग्स फिक्स की हुई हैं, जो भी आपका आगे आर्किटेक्चर हम देखेंगे, जो भी आर्किटेक्चर आप बनाएंगे, इतने न्यूरॉन्स हैं, इतनी लेयर्स हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आप बनाएंगे, आपकी एम्बेडिंग जिस लिहाज से भी आप सेट करेंगे, अगर आपने प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स भी यूज करनी है, एम्बेडिंग्स या तो रैंडमली इनिशियलाइज्ड होंगी या आपकी कोई प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स होंगी जिससे वो इनिशियलाइज होंगी. और वो जो प्री इनिशियलाइज्ड हैं या जो वो आपने रैंडमली इनिशियलाइज करने हैं, दे आर सेम शेप मैट्रिसेस. सो जो आपका आर्किटेक्चर है उसको ये नहीं पता कि मेरे पास जो एम्बेडिंग्स आ रही हैं वो अब प्री ट्रेंड आ रही हैं या मेरे पास जो एम्बेडिंग्स आ रही हैं दे आर जस्ट रैंडमली इनिशियलाइज्ड. लेकिन हाँ, जिस केस में जिस केस में वो अपडेट करेगा जी, तो वो बैक प्रॉप जो है वो फिर एम्बेडिंग्स को भी इफेक्ट कर रही होगी, राइट? एग्जैक्टली इफेक्ट कर रही होगी, उसकी डायमेंशन को इफेक्ट नहीं करेगी. यहाँ पे एक फ्रीज पैरामीटर होता है. अगर हम फ्रीज को फॉल्स कर दें, तो ये बैक प्रॉप उस पर भी लगना शुरू हो जाएगा, यानी इसका रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू हो जाएगा. दैट्स ऑल द चेंज यू नीड. ठीक है, मेक सेंस? यस. आपका सवाल शायद कोई और था, आई डोंट नो. नहीं, मैं बस वही, क्योंकि वो जब बैक प्रॉप हम फिगर आउट करते हैं ना, तो उसके अंदर चूंकि आर्किटेक्चर का लाइक एक रोल होता है जनरली, राइट? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो जो जब फीड हो रही होंगी एम्बेडिंग्स जिन्होंने कि अपडेट होना है, Yes. तो वो इसको बिहाइंड द सीन्स कैसे कर रहा होगा, वो थोड़ा So you want कि अगर उसको नॉन न्यूमेरिकली कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा? Is that your question? हाँ, मतलब जो उसके अंदर अपडेट्स एक्चुअली कर रहा होगा, जो जिस भी तरह वो चेन रूल लगेगा, एग्जैक्ट चेन रूल कैसे लगेगा, दैट इज व्हाट आई एम वंडरिंग. Okay, let me try to drive that quickly here. If I'll be successful, let's see. Because सही. let me see that. Okay, सवाल इनका ये है कि बैक प्रॉप कैसे लगेगा एम्बेडिंग्स के ऊपर. So let me draw a box, a simple box, and we have wx times e. This e is now embedding. Like पहले हम x0 देते थे, मैं x0 को अब e0 कह रहा हूँ. That's some embedding vector. Okay, e0 plus wh h0, और इसके ऊपर कोई नॉन लिनियरिटी लगी हुई है, एंड दैट इज माय फाइनल वैल्यू z. ओके, एंड लेट्स से ये वैल्यू जो भी है z, ये ऊपर जाती है, इसके ऊपर कोई और वेट मैट्रिक्स अप्लाई हुआ है wy, and it generates y hat. And then we have original y, let's say, and there is some loss function. So loss of y hat y. Okay? और अभी मैं reoccur नहीं कर रहा, मैं सिर्फ straight forward ऊपर जा रहा हूँ. Let's say. So to compute the derivative of the loss with respect to e naught. So इसको ऐसे देखिएगा जरा, ये चेन रूल भी थोड़ा सा सीख लें. अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ई, तो बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि ई
मेरे लॉस फंक्शन को कैसे इम्पैक्ट करता है. यस, सो बजाय इसके कि मैं ये देखूं हाउ E impacts L, I could see how E impacts Z and then Z impacts L. Make sense? Which means the derivative of L with respect to E is simply how L is affected by Z and then how Z is affected by E. That is one chain. That is one chain. Okay? Sarim, is that okay? हाँ जी, मुझे आइडिया हो गया है आपके आंसर ठीक है. का. आई नो वेयर यू आर गोइंग. तो समझ आ रहा है. So we can further break them down. We can further, for example, break this Z down here. So how Z impacts L is basically how Z impacts Y hat, and then how Y hat impacts L. So how L is impacted by Y hat, and then how Y hat impacted how Y hat impacts this, and how Z impacts Y hat. That is this piece. Similarly, we can break this piece as well. How E impacts Z is how E impacts this quantity, which is without activations. So how, let me call this quantity as without activations as let's say P. That's a bad name, but let's say P. How E impacts P, and then how P impacts Z. So Z is impacted by P, and how P is impacted by E. So if you just see, this whole thing is actually the derivative of loss with respect to E. And each and everything in this piece can be further simplified to a very unit level, जहाँ पे ये matrix multiplications और हर एक जो partial derivative है, that is easily extractable. Is that okay, Sarim? हाँ जी, बिल्कुल. सो उसमें सिर्फ ये फॉलोअप था कि जो जब हम फिर अपनी प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स देंगे, Yes. सो उसका एडवांटेज क्या होगा ओवरऑल इस काम में? Sometimes हमारे पास डेटा बहुत थोड़ा होता है, जो नया डेटा होता है ना, वो काफ़ी थोड़ा होता है. And we do not want कि हम from scratch उस पे embeddings learn करें. But we really want कि ये जो डेटा है ना, ये अपनी information भी कुछ ना कुछ inject कर दे. So what we do is, कि जो corpus से हमने embeddings learn की हुई हैं, we keep them and we adjust those embeddings on a small amount of data that we are looking into. ठीक है. अगर हम अपने डेटा सेट पे दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच एम्बेडिंग्स लर्न करें, द डेटा माइट बी वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी एंड द एम्बेडिंग्स मे नॉट बी वेरी स्टेबल. ठीक है, थैंक्स. ओके, सो इज दैट ओके? प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स और नॉट प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स. बाय द वे, अगर आपने प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स नहीं बनानी तो डॉट प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स ना कॉल करें, मैं कर देता हूँ आपको दोनों. ये डेटा है IDX. तो अगर आप डेटा को देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्बेडिंग वेक्टर निकालना है वर्ड जिसका इंडेक्स 3 है. सो वेक्टर E with index 3. Oh, that actually takes, I guess it takes a list. It doesn't take a list. E embedding argument indices position must be tensor, not a list. ठीक है जी. ये टेंसर होना चाहिए. ठीक है. अब ये आ जाएगा हमारे पास V. This is 10-dimensional pre-trained embedding vector. Okay. अगर मैं pre-trained यूज ना करूं, if I rather use E is equal to NN dot embedding, इसको मैं दे दूं these two inputs, I guess. You can use that.
अब जरा गौर से देखिएगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप प्री ट्रेंड बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करते तो आपका ग्रेडियंट फंक्शन ऑन होता है, विच मीन्स के रिक्वायर्ड ग्रेडियंट इज ट्रू। यानी अगर आप रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे बाय डिफॉल्ट दे विल बी अपडेटिंग, और अगर आप प्री ट्रेंड यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट दे विल नॉट बी अपडेटिंग। But there is a freeze parameter inside whenever you want to decide these that can switch the default preferences. So far so good? Yes? अच्छा, इस embeddings का फायदा क्या है जी? अगर आप मल्टीपल 1 का वेक्टर दे दो, 4 का दे दो, 6 का दे दो, will bring all, बड़ा आसान है, पूरा सेंटेंस दें, उसके इंडिसेस दें। एम्बेडिंग लेयर इसको कहते हैं। एम्बेडिंग लेयर है क्या? इट्स अ लुकअप टेबल, दैट्स इट, इट्स अ फास्ट लुकअप टेबल। आप इंडिसेस देते हैं तो बड़ी जल्दी से वेक्टर्स उठा के ले आता है। ये अगर आप किसी किताब में भी पढ़ें, एम्बेडिंग लेयर पहले लगाएं तो लेयर मतलब दैट्स अ लुकअप टेबल, दैट्स ऑल। मेक सेंस? ओके, ग्रेट। सो आई गेस यू नाउ नो द एम्बेडिंग is required, whatever way you implement it. This is our W. That's our W. Let me go back to W. ये W है ओरिजिनली, ये हमारी एम्बेडिंग है। ये W मैंने पहले बनाया था जो प्री ट्रेंड था, तो एम्बेडिंग भी उसी साइज की बनेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये मैं सिंपल RNN यूनिट्स बना रहा हूँ। सिंपल RNN यूनिट, इनपुट साइज विच इज द फीचर साइज, एम्बेडिंग की लेंथ कितनी है, पहला आर्गुमेंट ये होगा। दूसरा आर्गुमेंट इसके अपने हिडन यूनिट्स, यानी इसके अपने यूनिट्स कितने होंगे, ये प्रोड्यूस जो करेगा H, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, स्टैक करना है या नहीं करना, 1। बैच फर्स्ट, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आपने जो इनपुट रिप्रेजेंटेशन देनी है बैचेस की फॉर्म में, उसमें बैच डायमेंशन पहले होगी या सीक्वेंस डायमेंशन पहले होगी या क्या होगी। सो स्टैंडर्ड्स हैं मुख्तलिफ, यानी मैंने इनपुट देनी है 4 बैचेस हैं, हर बैच से मुराद है कि मेरे पास डिफरेंट ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी, हर ट्रेनिंग एग्जांपल जो है वो 5 वर्ड्स पे मुहित है। तो मैं पहली 4 ट्रेनिंग एग्जांपल्स को एक बैच में बना लेता हूँ, मिनी बैच, अगली 5 को एक बैच में, अगली 5 को एक बैच। सो बैच साइज बेसिकली इज 4 इन दिस केस, ठीक है, जैसे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, बैचेस बना रहा हूँ। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, यानी टेंसर बनेगा ना आपका, बैच इनटू सीक्वेंस लेंथ यानी सेंटेंस लेंथ इनटू फीचर डायमेंशन विच इज 10 इन दिस केस। तो अगर आपने बैच को पहली डायमेंशन में रखा हुआ है तो आपको बैच फर्स्ट ट्रू करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल। मेक सेंस? दैट्स इट, बैच फर्स्ट ट्रू। और अब जो इनपुट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, बैच सीक्वेंस लेंथ इनपुट साइज। यस, ये मैंने RNN बना दिया एक। अच्छा जी, अब मैं डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं जिस फॉर्म में मुझे इनपुट्स चाहिए। सो मुझे बैच साइज, सो डेटा डॉट व्यू ये उसको रीशेप करेगा इस फॉर्म में, बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ एंड इनपुट साइज। और आप देखें बैच जो है वो डायमेंशन पहली है, और वही हमने बैच फर्स्ट ट्रू किया हुआ था यहाँ पे। एंड देन इट ब्रिंग्स आवर, अब जब ये RNN हम इनपुट्स पे लगाएंगे तो 5 लेंथ है, 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स पे ये सिक्वेंशली लगेगी हर बैच के ऊपर। एक बैच में 4 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं, और हर वर्ड 10 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेड है। मेक सेंस? अब ये इस पे RNN चलेगा, देखते हैं क्या जनरेट करता है। यस, इनपुट आपको इस फॉर्म में शेप करके RNN को देनी चाहिए, अदरवाइज दूसरे स्टैंडर्ड्स और भी। एरर आएगा, मतलब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ जैसे प्रोग्रामिंग में होता है, यानी ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, आउटपुट डॉट शेप देख लेते हैं। याद रखिएगा ये जो RN PyTorch में स्टैंडर्ड है, आउटपुट की शेप इस फॉर्म में होती है, बैच सीक्वेंस लेंथ इनटू नंबर ऑफ डायरेक्शंस टाइम्स हिडन स्टेट्स।
नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्या हैं? नंबर ऑफ डायरेक्शंस अगर आपका बाई डायरेक्शनल RNN है तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस 2 होती हैं। अगर आपका बाई डायरेक्शनल नहीं है तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस 1 होती है। ये नंबर ऑफ डायरेक्शंस है। हिडन साइज हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब जरा आउटपुट साइज देखिए, बैच इंटू 5 सीक्वेंस लेंथ इंटू 2। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, विच मीन्स अगर मैंने पहले बैच के तीसरे सेंटेंस की फर्स्ट बैच थर्ड सेंटेंस अगर जब मैंने प्रेजेंट किया था तो उसकी मैंने आउटपुट देखनी हो बिलफर्स, यानी यूं देखिए, आउट फर्स्ट बैच में 5 वो हैं यानी सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट बैच, इस फर्स्ट बैच में लेट्स से थर्ड कि मैं जाके आउटपुट देखता हूँ, चौथा दैट इज बेसिकली दिस हिडन स्टेट। और ये हिडन स्टेट क्या है? ये हिडन स्टेट बेसिकली अभी हमने ऊपर वो जो आउटपुट का मैं बादल सा बनाता हूँ वो तो बनाया नहीं, तो ये हिडन स्टेट ही ऊपर जा रही है, वही ए है, वही आगे जाएगा। ठीक है, अगर मैं WY डिफाइन करके ऊपर एक यानी स्टैक कर दूं, एक और लेयर बना दूं, नॉर्मली होता है ये कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से सारी आउटपुट्स आप गेन करते हैं, उसके बाद आप एक क्लासिफायर उसके ऊपर ट्रेनिंग, इस तरह भी हो जाता है। सही है जी, मेक सेंस? ओके, सो दैट इज H that is moving on. That is the outputs at every time step that you are recovering mini batch. Okay, next है hidden की जो dimensions हैं वो और से देख लें। नंबर ऑफ लेयर्स हमारे केस में 1 है, इंटू नंबर ऑफ डायरेक्शंस हमारे केस में 1 है, इंटू 4 इंटू 2। और ये याद रखें, ये हिडन जो है, ये लास्ट जो हिडन जो बाइट जिसको हम अक्सर थ्रो कर दिया करते हैं, ये वो है। मेक सेंस? यानी ये जो हिडन आएगी, दिस इज नॉट द हिडन इन इंटरमीडिएट स्टेट्स, दिस इज द फाइनल हिडन, this is the final hidden, final memory, the memory of the sentence. Okay. So if you see this hidden dot shape, this is 1 into 4 into 2. For each batch you have this thing. Is that okay? Input shape 4 into 5 into 10. So far so good? Yes, no? चलें आगे। Online audience, any problem here? No, sir. Okay, next, RNN, input size, hidden size, number of layers मैं 3 कर देता हूँ, stacked है ये, या deep RNN है। तो क्या होगा, ये dimensions जो हैं वो उस लिहाज से आप observe कर सकते हैं, ये जो मैंने comments लिखे हैं, dimensions उस लिहाज से हो जाएंगी। Output shape is previously the output shape was 4 into 5 into 2. वो यहाँ पे भी वही है। क्यों यहाँ पे ये क्यों? Number of layers तो 3 है। So output shape होनी चाहिए थी 4 into 5 into number of directions into hidden. Oh, number of directions तो 1 ही है ना, इसमें तो number of layers की बात ही नहीं है। Output shape में तो number of layers की बात ही नहीं है। So that stays the same. हाँ, HN में shape की बात है, number of layers times number of directions times batch times hidden size, और ये आपको अभी यहाँ पे evident भी होगा। यहाँ पे पहले 1 था, अब 3 है। Make sense? Yes? And that makes sense. आपके पास अगर 3 layers हैं तो हर layer के end पे एक memory होएगी ना? Yes? उतनी होंगी ये अगर डायरेक्शन एक है तो। अच्छा, आउटपुट में ऐसा क्यों नहीं है? आउटपुट लेयर्स पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है? वो सेम साइज की आउटपुट होगी लास्ट में से। यस, द रीजन इज कि इसकी आउटपुट इसमें जा रही है, इसकी आउटपुट इसमें जा रही है, फाइनली यू हैव जस्ट वन आउटपुट।
It does not depend upon the number of layers. Yes? Great. So, great. Now you understood this. Next we have this bidirectional true. You're seeing that? Bidirectional true means you have now, you're now going in both of the directions. And now your shapes will be changing depending upon, अब आपकी number of directions 2 होंगी, जो भी shapes होंगी. Rest of the story is the same. Let's see. अगर आपने ये चलाया out, अच्छा, batch into sequence length into number of directions time hidden. ऐसा क्यों है? Forward जाते हुए outputs क्या थी? Backward जाते हुए outputs क्या थी? So पहले अगर आपके पास हर टाइम स्टैम्प पे एक आउटपुट थी, तो अब हर टाइम स्टैम्प पे 2 आउटपुट्स होंगे. And that's why this number of directions are there. Yes. Similarly, आपके पास जितनी हिडन स्टेट्स पहले थी अब उससे डबल है. So that is also there. और उससे डबल है फॉर एवरी लेयर. अगर हर लेयर आपकी बाइडायरेक्शनल है, स्टैक्ड है, तो हर लेयर बाइडायरेक्शनल होगी. Make sense? So these kind of orders, they should make sense now. So let's see. 4 into 5 into 4. Welcome, Sarfraz. आप इसी क्लास के हैं? ओके, ठीक है जी. बेटे फोन छोड़ दें आप, ये एमफिल में भी बताना पड़ेगा, है बीएस में होता है ये. ओके, सो इज दैट ओके? बाइडायरेक्शनल ट्रू. अब अगर आप गौर से देखें, आउटपुट शेप दैट इज बैच into sequence into number of directions time the hidden states. Now you have two outputs, for example, two hidden states for every outputs, for backward and forward output for each time step. And if you see the hidden, that is number of layers time number of directions, and rest of the structure is the same. Make sense? Sorry? इस केस में नंबर ऑफ लेयर्स एक है, नंबर ऑफ लेयर एक रखी हुई ऊपर. जी ठीक है. अच्छा, ये जो आउटपुट आई है और ये जो हिडन आई है बाई डायरेक्शनल के केस में, इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली निकालना चाहूँ कि फॉरवर्ड वाले आउटपुट्स कौन से थे और बैकवर्ड वाले आउटपुट्स कौन से थे, इनको अगर मैं सेपरेट आउट करना चाहूँ वन बाय वन, हाउ कैन आई डू दैट? उसके लिए ये कमांड लिखी हुई है रीशेप की, आउट डॉट व्यू दिस. अगर आप इसको व्यू कर लें, बैच साइज इंटू सीक्वेंस लेंथ इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ डायरेक्शंस इंटू हिडन साइज. फर्स्ट you reshape your output in this form, and then you pick the forward using this and backward using this. And that will give you the same kind of structure like कि अगर एक लेयर होती तो उसका क्या होता, फॉरवर्ड कैसे होता और बैकवर्ड कैसे होता. अगर आप सेपरेट आउट 2 अरेज में रखना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड आउटपुट्स ये हैं, बैकवर्ड आउटपुट्स ये हैं, so you can do that using these commands. और नॉर्मली होता ये है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो आउटपुट होती है उसको कंबाइन करके हम अपनी फाइनल आउटपुट लेयर में देते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन कंबाइन देम इफ यू रियली वांट. सही है? तो वेक्टर कंकैटिनेट होकर बड़ा हो जाता है, बट दैट्स वन वे. अगर आप कंकैटिनेट करना चाहें, लोग एवरेज भी ले लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं, लोग किसी एक को थ्रो भी कर देते हैं. आई मीन देयर आर सेवरल वेज. ओके, ग्रेट. सिमिलरली अगर आप हिडन स्टेट को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हिडन स्टेट को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो डू दैट. यस, सो फॉर सो गुड. So, sorry? हिडन स्टेट की डायमेंशन अपनी फर्क है. हिडन स्टेट जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है वो फर्क है, आउटपुट जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है वो फर्क है. इसलिए उसको जब आपने रीशेप किया था तो आपने यहाँ पे फर्क पैरामीटर्स दिए थे.
इसको जब रीशेप कर रहे हैं तो फर्क पैरामीटर्स दे रहे हैं और ऊपर लिखे हुए कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड एन RNN यूजिंग जितना वो था वो खत्म हो गया, यूजिंग PyTorch। ओके, क्लास एक फायदा, एक दो किस्म की चीजें होती हैं। एक होता है सिक्वेंशियल कंटेनर, जो हमने शायद पिछली क्लास में देखा था, मैंने आपको दिखाया था DNNs के अंदर nn.sequential, और उसके अंदर आप लेयर्स डिफाइन कर देते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि सिक्वेंशियल कंटेनर के अंदर जिस ऑर्डर में आप लेयर्स को डिफाइन करते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ें चाहते हैं तो यू शुड डिफाइन अ क्लास, यानी आप जिस मर्जी ऑर्डर में अपना आर्किटेक्चर डिफाइन करें, देन यू यूज डिफरेंट लेयर्स, यानी जब लेयर्स को किस फॉर्म में यूज़ करना है यू डिफाइन अ फंक्शन। आप सिर्फ ये देख लेंगे मुझे ये लेयर्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, but then I will be using these layers in this particular format. So a more abstract form is using classes rather than sequential container. Having said that, sequential container is also okay, but more kind of complicated programs, they actually rely on classes because इसके जो forward functions हैं उनको आप modify कर सकते हैं, उनको override कर सकते हैं and so on. So you can think of having class implementation is more abstract, more flexible than the sequential container. Okay? और मैंने sequential container last time आपको दिखाया था, याद है last lecture में, जब जिसमें error आ गया था और वो जो हमने binary cross entropy loss यूज किया था और error आ गया था, पता ही नहीं है किसी को। वाओ, ये जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये सिक्वेंशियल कंटेनर है। अगर आपको याद हो तो 2 लेक्चर्स पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, 3 न्यूरल नेटवर्क्स C410 के ऊपर, और मुझे एनीवेज। अच्छा जी, क्लास, अगर आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं PyTorch की इंप्लीमेंटेशन, तो आपने जो भी क्लास का नाम डिफाइन करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो इनहेरिट होनी चाहिए nn.module से, ताकि आप उसको फंक्शन को ओवरराइड कर सकें और जो भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ठीक ठाक पता होगा होपफुली। अच्छा, ये इसका कंस्ट्रक्टर है जी, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो बड़ी फनी सी बात होगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं आप सुपर क्लास का, ये भी आपको पता है। अगर आपने इधर से PUCIT से ही DSP किया हुआ तो आपको पता होगा DSA में कितना रगड़ा लगाते हैं इस बात के ऊपर। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं इनहेरिटेंसेस क्यों चाहिए, आपका ये सवाल है, और इसका तो मैं जवाब NLP में तो नहीं देने लगा, यही सवाल है आपका, इनहेरिटेंस के फवायद। मैं तो और गंदा सवाल कर सकता हूँ, जब मशीन लैंग्वेज थी 0-1 वाली तो लोगों ने हमें ऊपर कंपाइलर लिख दिया, हो तो सकती है हर चीज, देखिए ना, फिर हो तो सकता है ना इवेंचुअली, तो आसानियां होती हैं जरा, इसलिए। ओके, एम्बेडिंग लेयर, देन यू डिफाइन एन एम्बेडिंग लेयर। ये वो जगह है जहां पे आप, और बाय द वे यहाँ पे मैं कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने लोकल वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हैं और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। एम्बेडिंग लेयर, यहाँ पे मैं प्रीटेंड भी कर सकता हूँ, ये GRU यूनिट में यूज कर रहा हूँ, आप सिंपल RNN यूनिट यूज कर लें, इट्स योर चॉइस। LSTM यूज करनी है LSTM यूज कर लें। LSTM को यूज करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका होता है, क्योंकि LSTM एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रही होती है। LSTM की जो आउटपुट्स होती हैं वो 2 की बजाय 3 होती हैं, सो उसको यूज करने का तरीका सीख लीजिएगा। थोड़ा सा फर्क होता है GRU और RNN से, लेकिन यू कैन जस्ट काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ थिंग, जस्ट रिप्लेस हियर। अब एक मेरे पास लीनियर लेयर है और उसके बाद मेरे पास क्लासिफिकेशन लेयर है, सिग्मॉइड, जो क्लासिफिकेशन लेयर तो नहीं, ये सबको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर देगी, सही है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, मैं जो भी पास करूंगा ये मेरा बन जाएगा, लेकिन अब इन डिफरेंट लेयर्स को यूज कैसे करना है ये मेरा फॉरवर्ड फंक्शन डिफाइन करेगा, और फॉरवर्ड फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आप इसका ये कॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, यानी यू कैन थिंक ऑफ इट्स बीइंग ओवररिडन फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है फॉरवर्ड। यू नीड नॉट टू एक्सप्लिसिटली कॉल इट, जब भी आप मॉडल डॉट स्टेप करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा।
सही है, ओके। इसमें सेल्फ को सबसे अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ दिस पॉइंटर, ऑल्दो कि ये पॉइंटर नहीं है, ऑल्दो कि दिस इज नॉट अ पॉइंटर बट दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। इनपुट इज इनपुट एंड हिडन इज द प्रीवियस हिडन। अब प्रीवियस हिडन को इनिशियलाइज करके भेजते हैं वगैरह। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपनी एम्बेडिंग लेयर में उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें जिस फॉर्म में अगली लेयर्स को चाहिए होती हैं, मे बी बैच फर्स्ट फॉर्म में, एंड दैट फंक्शन विल हेल्प यू डूइंग दैट। योर आउटपुट इज राइट नाउ is just embedded layer, embedding thing, and then you apply your RNN, self.rnn. याद रखें आपका self.rnn is your object variable, and this actually applies this GRU. Okay, ये जब अप्लाई होगा तो आपके पास आउटपुट्स भी आ जाएंगी और हिडन्स भी आ जाएंगे। उसके बाद आप ये पूछ रहे होंगे कि यार ये आउटपुट इज इक्वल टू एम्बेडेड क्यों किया है? पता नहीं मैंने क्यों किया, सीधा एम्बेडेड उधर दे देता तो ठीक है, पता नहीं क्यों किया। जब मैं बैठा था पता मेरे ज़हन में क्या था, मैं क्यों लिख दिया। अभी मुझे नजर आ रहा है कि एम लाइन ऐड हुई है, यानी इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि इससे कोई पता नहीं अंदर से सिंबल टेबल कॉल होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आई गेस इट्स रिमूवेबल। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि आउटपुट इनपुट बनी हुई है, right? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई डीप कॉपी के लिए मैंने नहीं किया, इसमें डीप कॉपी के लिए डॉट कॉपी का फंक्शन है, otherwise everything is shallow. So okay, great. Output and hidden. Then जो भी आउटपुट थी उस पे मैंने, ये वो लीनियर लेयर है, वो जो मैं बादल सा नहीं बनाता ऊपर, ये वो है, ठीक है। आउटपुट के ऊपर ये लगेगी और इसके अपने वेट्स होंगे एंड सो ऑन। और ये लीनियर लेयर की मैंने डिफाइन की हुई है, कितना इनपुट लेगी हिडन साइज का, आउटपुट करेगी आउटपुट साइज जो भी आपने रखा है। उसके बाद मैं उसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ अगर मैंने क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन सी क्लास जो है वो मोर प्रोबेबल एंड सो ऑन, सिग्मॉइड लगा के। और ये अब ये फिर देखें, ये आउट सिग कर दिया मैंने, आउटपुट होनी चाहिए थी, और नहीं आउटपुट सिग्मॉइड, ठीक है ठीक है। सो ये मेक सेंस। Let us play with it. We have feature hidden size being 256, 20 being input size. Feature size is 20, input size. ये 1 पता नहीं क्या है। Output size 1, binary classification होगा, output size is 1. Okay. RNN define हो गया। ये मैंने टॉर्च डॉट जीरोज डॉट हिडन, ये इनपुट्स मैंने बनाई हैं कुछ, ये हिडन स्टेट इनिशियलाइज की है 0 से, जो पहली वाली हिडन स्टेट है इनिशियलाइज की है 0 से। ये इनपुट्स हैं, फजूल में ये इनपुट्स ले लें, आप कोई और ले लें, ठीक है, रैंडम है सारा कुछ। फॉर एवरी इनपुट वी अप्लाई RNN। अब सिर्फ यहाँ पे चेंज ये है कि बजाय एक पूरे सीक्वेंस पे अप्लाई करने के मैं एक एक वर्ड पे अप्लाई कर रहा हूँ। मेक सेंस, एक एक वर्ड पे अप्लाई कर रहा हूं। और अगली दफा नहीं, ये है ही एक एक वर्ड की यार, एक एक वर्ड है ही एक एक वर्ड, मैं दे ही एक एक वर्ड रहा हूं, आप खेल लीजिएगा इससे, ठीक है। आई प्लेड इनफ बट आई डोंट नो कि ये फाइल में कहां से उठा लाया, और भी अच्छी अच्छी फाइलें थी। एनीवेज, फॉर एवरी वर्ड यू अप्लाई दिस RNN and you get here. Finally, this is your Y, this is your H, and you're good to go. That's it. अब अगर आपके पास कोई और वर्ड है, उसको आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव क्लास में है या नेगेटिव क्लास में, मे बी वर्ड और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जो भी, आपने सिर्फ ये करना है, ये RNN कॉल करना है आपने, और इसका फॉरवर्ड कॉल होगा, इसका फॉरवर्ड। जब ये RNN पे आप करेंगे, इसका फॉरवर्ड कॉल होगा। ये RNN ऑब्जेक्ट है ना, ये पाइथन ऑब्जेक्ट में कॉलिंग अलाउ करती है, अगर आपको सही है जी। ओ, हो जाता है, हो जाता है। ये पाइथन और मैटलैब इस हवाले से काफ़ी बुरे हैं।
अगर आप और दीगर लैंग्वेजेस का मुझे पता नहीं, इन दोनों में तो अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन है और आपने उस नाम का वेरिएबल बना लिया तो बस वेरिएबल ही चलेगा, ठीक है। लिहाजा मैं जो कोडिंग करता हूँ मैंने तो कन्वेंशन बनाई हुई है। अगर फंक्शन है तो f अंडरस्कोर, काशिफ साहब ने लिखा है तो k अंडरस्कोर, तो अब आगे कोई वेरिएबल नेम भी बनाना जो भी है तो मैंने वो बनाई हुई है ताकि जस्ट टू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद, क्योंकि पाइथन वालों ने ये कन्वेंशन थोड़ी बनाई होनी अपने उनकी। सो यू कैन कम अप विद योर ओन कन्वेंशंस, और नेमिंग कन्वेंशंस अच्छी होती हैं कई दफ़ा, पर्टिकुलरली ये पाइथन में तो और मैटलैब में दोनों में ये मसला है कि आप बिल्ट इन वेरिएबल्स को, बिल्ट इन फंक्शंस को बड़ी आसानी से आप लिखें। कोई फंक्शन है प्रिंट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, प्रिंट करके लिखें आप प्रिंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रिंट कॉल करके दिखाएं, सो बी केयरफुल, सही है जी। Okay, I'm quitting this lecture now. Next lecture is the most fundamental, most important lecture regarding your projects, and almost the most toughest problem, most tough problem in NLP, which is sequence to sequence modeling. And we will be implementing English to French translator, neural machine translation with encoder decoder model along with attention and these kind of things. I'll explain these things next time. Don't skip next class. If you have any questions, please ask. Online लोग जो बैठे हैं सवाल प्लीज पूछिए। एक क्वेश्चन है काशिफ, उसमें जो आपने बताया था कि फॉरवर्ड भी हम कर एक वो बनाते हैं RNN और एक बैकवर्ड जो है जी और उसको कंबाइन करते हैं ना उनके आउटपुट्स को। जी, जो कंबाइन वाला पार्ट है वो काफ़ी सिंपल सा लग रहा है, मतलब उसमें वी जस्ट टेक एन एवरेज, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं है। एवरेज भी कर सकते हैं और कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, और हम अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे कि एक्चुअली अटेंशन मैकेनिज्म जब हम देखेंगे ना तो एक्चुअली सारी टाइम स्टैम्प पे जो आउटपुट्स आ रही है ना उन सब की सम हाउ वेटेड एवरेज लेके एक फाइनल इनपुट बनाई जाती है जो डिकोडर को दी जाती है। उस सूरत में बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है ना दे आर वेरी हेल्पफुल, और नॉट ओनली फॉर दैट टाइम स्टैम्प, मुख्तलिफ टाइम जितने भी टाइम स्टैम्प्स उन सबसे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। एंड पर्टिकुलरली जब अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं तो दिस बाई डायरेक्शनल बिकम्स मच मोर फ्रूटफुल। ठीक है, थैंक्स। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, बाई डायरेक्शनल डिकोडर लिखेंगे, बाई डायरेक्शनल इनकोडर लिखेंगे, और अटेंशन मैकेनिज्म उस पर अप्लाई करेंगे और बड़ा फैंसी किस्म का प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। वी विल सी दैट। ग्रेट, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस? चलें जी, बहुत शुक्रिया।